Hello, students. Welcome back. I hope everybody is doing well and fine. So, in this part, in the part four of motion, what we are basically going to cover is the left of topic from the previous class. इससे पहले वाले तीन parts में we have understood about motion, distance, displacement, and concepts about speed and acceleration and velocity as well. So, just to sum up, what was motion? Motion was whenever an object changes its position with respect to time या फिर reference point. That is what motion. Distance, actual path covered by a body. Displacement, it is the shortest straight line distance between initial and final point and in a straight line and in a specific direction. Okay, so shortest straight line distance between initial and final point in a specific direction. Displacement. उसके बाद स्केलर वेक्टर दिखा था. स्केलर वॉज द थिंग विच वॉज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, वेर एज वेक्टर वॉज द थिंग which was having magnitude as well as direction. Okay, then we understood about speed. It is distance traveled per unit time. Then velocity was displacement upon time, which is distance traveled in a specific direction upon time. And उसके बाद finally we did about acceleration, in which we understood that there is a rate of change in velocity per unit time. उसमें हमने ये देखा था लास्ट क्लास में कि जब वेलोसिटी बढ़ता है तो एक्सेलरेशन होता है और जब वेलोसिटी कम होता है तो डीसेलरेशन होता है या फिर रिटार्डेशन होता है या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है. अब उसका एक एक्सटेंडेड टॉपिक है. व्हाट इज़ इट? वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन विल गो थ्रू नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट, एंड देन विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. तो सबसे पहले तो लेट्स फोकस ऑन व्हाट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, तो होता क्या है, वेन एवर अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ओके, increases its velocity in equal amounts in equal interval of time. Now this is like a little bit different from those we have studied in the previous class. हमने जब यूनिफॉर्म मोशन सीखा था या फिर यूनिफॉर्म स्पीड देखा था या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखा था, तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा था, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना. अनलाइक दैट, एक्सेलरेशन में हम लोग डिस्टेंस को ना लेकर हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, द कॉन्सेप्ट इज नोन एज uniform acceleration. On the other hand, if you go for non-uniform acceleration, what do you see? A body again in a straight line in a specific direction. ये हम क्यों लिख रहे हैं? Because acceleration uses velocity and velocity में ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है. So a body in a straight line and in a specific direction increases its velocity by unequal amounts in equal interval of time. That is what known as non-uniform acceleration. Okay. लेट्स कम बैक टू यूनिफॉर्म रिटार्डेशन. व्हाट इज़ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन? रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी का कम होना. तो अगर इक्वल अमाउंट में कम हो रहा है तो यूनिफॉर्म, अगर अनइक्वल अमाउंट में कम हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म. लेट्स सी दैट. सो बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन in a specific direction reduces its velocity by equal amounts in equal interval of time. The concept is known as uniform retardation. On the other hand, if you go for a body in a straight line in a specific direction reduces its velocity by unequal amounts in equal interval of time, the body is said to have non-uniform retardation. Okay, so just you need to come up to the concept of this thing, that in uniform motion, in uniform speed, in uniform velocity, we use the concept of equal distance covered in equal interval of time या unequal distance covered in equal interval of time. But जब आप acceleration के बारे में बात करते हो, सो सिस्टम थोड़ा सा बदल जाता है, आंसर थोड़ा सा बदल जाता है. वो क्या बन जाता है? इक्वल अमाउंट्स में अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और अगर इक्वल अमाउंट्स में वेलोसिटी रिड्यूस हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है. ऑन द अदर हैंड, अगर अनइक्वल अमाउंट में वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, और अगर अनइक्वल अमाउंट में आपकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, ओके, equal interval of time mein, so that is said to be known as non-uniform retardation. So this one is important, you will go through it. Now there are certain examples which have followed. For example, अगर मैं uniform acceleration के बारे में बात करूँ, example क्या है? Motion of a freely falling body. What do you mean by freely falling? Anything which is falling under the influence of gravity. Okay, आप ऊपर से कोई चीज़ नीचे डालो तो वो जो ऑब्जेक्ट है it comes under freely falling thing. Okay, so whenever an object is coming or falling under the influence of gravity, that is known as freely falling. So freely falling is an example of uniform acceleration. On the other hand,
अगर मान लो कोई व्हीकल है, इट इज़ मूविंग डाउन द स्लोप या फिर मूविंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन, राइट, एंड मान के चल रहे कि हम लोग पेडलिंग नहीं कर रहे या फिर एक्सेलरेशन नहीं दबा रहे ऑन इट्स ओन, अगर ऑन इट्स ओन ये अगर इंक्लाइन प्लेन की तरफ से नीचे आ रहा है तो वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही एग्जांपल है. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल इज़ वेरी सिंपल, like if you are moving through a vehicle, going through a vehicle in a crowded city road, so that is coming out to be a example of non-uniform acceleration. ठीक है. Okay, now there are some formulas. We will try out some basic numericals which are related to speed, acceleration, average speed and stuff, but the important ones. Okay, तो एक हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, speed is equal to distance upon time, acceleration is equal to v minus u upon t, average speed is equal to total distance upon total time, and sometimes you also use this formula of average velocity which is v plus u divided by 2. हालांकि इससे पहले वाले क्लास में हमने एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, वो भी है लेकिन साथ में आपका ये वाला फॉर्मूला भी है. ओके, एंड एक आपको कौन सा बताया था, इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन द फॉर्मूला इज़ v minus u डिवाइडेड बाय t. On the other hand, if you want to calculate retardation, again the formula is v minus u divided by t. The only point is that acceleration, if it is coming out to be positive, it is acceleration. If the value of acceleration is coming out to be negative, then it is retardation. Okay, so let's come back to the first question. First question जो है, it's a very good question. वो कह रहा है कि एक गाड़ी है जो कि 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर के. तो आपको यूनिट्स को देखकर आइडेंटिफाई करके मतलब यूनिट्स को देखकर आइडेंटिफाई करने का एबिलिटी होना चाहिए. अगर सिर्फ किलोमीटर या मीटर दे रखे दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस. अगर किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड दे रखा है तो दैट इज़ स्पीड, वेलोसिटी, समथिंग लाइक दैट. ओके, so 30 kilometers is covering in 40 kilometer per hour and next 30 kilometer is covering in 20 kilometer per hour. Find average speed. इसके लिए सबसे पहले मैंने लिखा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब मेरे पास टोटल डिस्टेंस तो है, कैसे है, 30 + 30, क्योंकि पहला 30 और दूसरा 30 कम्स आउट टू बी 60. अब मेरे पास टोटल टाइम नहीं है, उसको निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान देखते हैं. अब मेरे को फर्स्ट 30 किलोमीटर दे रखा है 40 किलोमीटर की स्पीड में जा रहा है, तो यहाँ पे टाइम 1 निकाल सकता हूँ. स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, मैं टाइम निकाल सकता हूँ. मान लो फर्स्ट 30 को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, t1 टाइम. सेकेंडली, अब यहाँ ध्यान दीजिए, डिस्टेंस दे रखा है 30 किलोमीटर, स्पीड दे रखा है 20 किलोमीटर. मान लो उस 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए टाइम कितना चाहिए, t2. ओके, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इस वाले फॉर्मूले को मैं लगा के t1 निकाल सकता हूँ. t1 इज डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज़ 30/40 विच इज़ 3/4 आवर. यहाँ से t1 निकल गया. सिमिलरली मैं t2 निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज़ 30/20 विच इज़ 3/2. तो t1 निकल गया 3/4 और t2 निकल गया 3/2. अब मैं क्या करूँगा, टोटल टाइम निकालूंगा विच इज़ t1 + t2. टोटल टाइम निकालूंगा 3/4 + 3/2 विच इज़ 3 LCM आ जाएगा आपका 8. 3/4 × 8, 3/2 × 8. ये मैंने ऐसे ही कैलकुलेशन करके दिखा रखा है, आपको पता है कि LCM कैसे कैलकुलेट होता है. एंड अल्टीमेटली आई विल गेट 9/4 आवर्स. अब मुझे निकालना है एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास 60 था ही, अब टोटल टाइम भी आ गया विच इज़ 9/4. 9/4 का 4 ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेट करेंगे आपके पास 240/9 का अल्टीमेट आंसर आपका क्या आएगा, 26.6 किलोमीटर पर आवर. तो इस क्वेश्चन का जो बेसिक कैच था, डिस्टेंस और स्पीड दे रखा है, अगेन डिस्टेंस और स्पीड दे रखा है, दोनों में टाइम गायब था. तो मैंने इंडिविजुअली t1 और t2 निकाल के दोनों का t1 + t2 करके I calculated the average speed. So this is one type of question. Let's move on to the another type of question which is there. This is the one. Now again this is important one. वो कह रहा है कि 120 किलोमीटर का ट्रैक है, यानी कि ऑलरेडी आपको वो टोटल डिस्टेंस दे रहा है. एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है जिसमें पहला 30 किलोमीटर कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में. अब मैं कितना फास्ट जाऊँ, कितना फास्ट मतलब अल्टीमेटली ही इज टॉकिंग अबाउट हाउ मच स्पीड. ओके, कितना फास्ट जाऊँ कि नेक्स्ट 90 किलोमीटर कवर करूँ ताकि मेरा टोटल जर्नी का एवरेज स्पीड कितना हो जाए, 60 किलोमीटर पर आवर. अब एक ही क्वेश्चन में इतना इन्फॉर्मेशन है, समझ गए. 120 किलोमीटर का ट्रैक है, पहला 30 किलोमीटर 30 की स्पीड में जा रहा है. अब वो बोल रहा है कि नेक्स्ट 90 किलोमीटर में कितने स्पीड में जाऊँ ताकि मेरी पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड कितना हो जाए, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए. अब मैं 60 किलोमीटर पर आवर से ही मैं टेकअप करता हूँ क्वेश्चन को. टोटल डिस्टेंस मुझे गिवन है 120 किलोमीटर और एवरेज स्पीड भी गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर. मैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाता हूँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. एवरेज स्पीड की जगह रख दिया 60,
टोटल डिस्टेंस की जगह 120 और टोटल टाइम मुझे पता नहीं, तो टोटल टाइम यहाँ से कितना आ गया 120 डिवाइडेड बाई 60 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 2 आवर्स। यानी कि 120 किलोमीटर के ट्रैक को कवर करने के लिए मेरे पास कितना टाइम है, कितने टाइम में कवर किया मैंने 2 आवर्स में। अब वापस जरा क्वेश्चन में आएंगे, फर्स्ट 30 किलोमीटर मैंने कितने स्पीड में कवर किया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कवर किया। फर्स्ट 30 किलोमीटर मैंने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कवर किया। और यहाँ पे मुझे टाइम पता नहीं है, तो मैं टाइम निकालूंगा T1, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला। T1 का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज़ कमिंग आउट टू बी 1 आवर। ओके, 30/30 विच इज़ कमिंग आउट टू बी 1 आवर। ओके, अब मैं नेक्स्ट 90 किलोमीटर कितने स्पीड में जाऊँ, अब स्पीड तो मुझे पता नहीं, इसलिए इसको मैंने क्या ले लिया x। ओके, और मुझे टाइम भी नहीं पता विच इज़ अ क्वेश्चन मार्क। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है मेरे पास 90 और स्पीड है मेरे पास x। इसको मैं एज इट इज़ ही रखूँगा, मान लो इतना आवर लग गया। अब टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या है, T1 + T2। टोटल टाइम तो मेरे पास हो गया 2, T1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 1 आवर, तो मैंने 1 प्लेस कर दिया, और T2 का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है 90/x, तो 90/x लिख दिया। तो 2 = 1 + 90/x। अब ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 2 - 1 = 90/x, तो 2 - 1 = 1, तो 1 = 90/x। अब x उधर चला जाएगा तो अल्टीमेटली x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कि नेक्स्ट 90 किलोमीटर्स मुझे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जाना पड़ेगा ताकि मेरी एंटायर जर्नी की वैल्यू कितनी आ जाए 60 किलोमीटर पर आवर आ जाए। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक बार गो थ्रू करिए, फाइंड आउट हाउ आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन। नहीं समझ में आया, जस्ट रिमाइंड इट, स्टडी इट अगेन। ओके, दीज 2 questions are very important one. Now let's focus on some other question. Okay, let's come back to question number 3. Now this is question number 3 here. A car travels 200 kilometers towards north in 5 hours. Calculate speed and velocity. Now आपको पता है डिस्टेंस दे रखा है, टाइम भी दे रखा है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वाला डिस्टेंस अपॉन टाइम फार्मूला, डिस्टेंस 200 टाइम 5, सो सिंपली 40 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया स्पीड। Again same formula is for calculating for velocity as well. Speed is equal to distance upon time, distance 200 time 5 coming out to be 40, बस साथ में velocity में फ़र्क क्या आएगा 40 किलोमीटर पर आवर towards north, यानी कि I need to mention the direction, unlikely it was not there in speed. स्पीड में आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे आपको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो बैक टू सम अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। let's say क्वेश्चन नंबर 4. ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बॉडी कवर्स A to B डिस्टेंस जो कि 250 किलोमीटर का है 5 घंटे में, एंड द सेम बॉडी कवर्स B to A, यानी कि वापस सेम पॉइंट में जा रहे हैं, अगेन 250 किलोमीटर्स कवर करके कितने आवर्स में 5 आवर्स में। मुझे निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। नाउ यू नो दैट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले मैं निकालूंगा टोटल डिस्टेंस विच इज़ 250 + 250 विच इज़ 500 किलोमीटर, राइट। टोटल टाइम क्या है 5 + 5 विच इज़ 10 आवर्स। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आ गया। एवरेज स्पीड तो मेरा निकल जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विच इज़ 500/10 विच इज़ 50 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने एवरेज वेलोसिटी को 0 ले लिया, क्योंकि बॉडी A से जा रही है B तक और वापस A में आ रही है, यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मेरा सेम है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो मेरा वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। ओके, लेट्स गो बैक टू सम अदर क्वेश्चंस, सम अदर टाइप्स। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। सो अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, नाउ दिस इज़ द कैच, यहाँ पे की वर्ड दे रखा है, ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। ओके, तो जब भी आपके क्वेश्चन में वर्ड्स आता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब जस्ट रेस्ट से शुरू किया, इसका मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ लेना है, इनिशियल वेलोसिटी को आपको क्या ले लेना है 0। जब भी बात आती है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट की तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो क्वेश्चन में जो वेलोसिटी गिवन है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u आपने 0 ले लिया, तो जो भी क्वेश्चन में गिवन वेलोसिटी है वो v हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो u और v आ चुका है, मिनट को चेंज किया सेकेंड्स में। अब मैं निकाल रहा हूँ आप यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन। सो फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है v - u/t, 21 - 0.60, यू कैलकुलेट, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब भी आप एक्सेलरेशन निकालोगे
मेक श्योर यू आर राइटिंग द करेक्ट यूनिट. सो 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो आ गया मेरा एक्सेलरेशन. ओके, लेट्स हाँ, तो अभी आपने देखा कि जब भी आपको स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वाली बात आती है तो मेक श्योर यू आर टेकिंग u0. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. दिस अ डिफरेंट टाइप. यहाँ पे क्या हो रहा है, अब बस अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब वो क्या हो गया, u0 इनिशियल वेलोसिटी 0. ओके, अटेन 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो दे रखा है वो आपका v हो जाएगा. टाइम 3 सेकेंड्स. फाइंड एक्सेलरेशन. a इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t फॉर्मूला लगाएंगे. a 6 माइनस 0, 6 मतलब फाइनल वेलोसिटी, 0 इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 3 कमिंग आउट टू बी 2. 6 डिवाइड बाई 3 2. अल्टीमेटली एक्सेलरेशन आपका कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसा ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, so this is another type of question. Let's come to question 7. Okay, a driver decreases its speed from 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड. तो 25 में चल रहा था, यानी कि ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और 10 में आ रहा है, यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी हो गया. टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड. सो u, v और t मैंने मेंशन कर दिया. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, a v माइनस यू अपॉन टी. v के जगह पे 10, u के जगह पे 25 और t के जगह पे 5. द पॉइंट इज दैट आपकी आंसर जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी. क्यों? क्योंकि 10 माइनस 25 इज माइनस 15 एंड इफ यू सॉल्व इट माइनस 3. सो एक्सेलरेशन इज कमिंग आउट टू बी माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन, सो वी हैव कैलकुलेटेड retardation, or we call it as negative acceleration. Okay, so sometimes question also comes up in this form. Let's go to question number 8 now. Question number 8 में क्या है, एक बस है जो कि ट्रैवल कर रहा है at 20 मीटर पर सेकेंड, decelerates at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ना ऐसे टाइप क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ दे रखी है, हम लोग गलती से ना u और v ले लेते हैं. ध्यान दीजिए, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि ये वेलोसिटी नहीं है, ये एक्सेलरेशन दे रहा है. हाउ लॉन्ग विल इट टेक का मतलब है they want to calculate what? They want to calculate the time. Okay, so they are referring to how long का मतलब है time. To come to rest. Now to come to rest मतलब फाइनल वेलोसिटी 0. याद रखिए, जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होता है तो u0, एंड जब कम्स टू रेस्ट, गाड़ी जब आके रुकती है, रुकने का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0. तो v ऑलरेडी डिफाइन हो गया, तो जो 20 आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, u. तो आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर गाड़ी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो बाय डिफ़ॉल्ट u0 हो गया. तो क्वेश्चन में जो भी वैल्यू वेलोसिटी की दे रखी है वो v बन जाता है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी बन जाती है. और अगर क्वेश्चन में गिवन है कि बॉडी कम्स टू रेस्ट का मतलब है v0, फाइनल वेलोसिटी 0. तो जो भी क्वेश्चन में वेलोसिटी की वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बन जाता है, इनिशियल वेलोसिटी विच इज़ u. सो दैट इज़ द कैच. सो यहाँ पे और बोले डिसेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन है बट विद अ नेगेटिव वैल्यू. डिसेलरेट मतलब क्या है, एक्सेलरेशन विद अ नेगेटिव वैल्यू. ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में वो नहीं कह रहा कि आप एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव लो, लेकिन आपको लेना पड़ेगा. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ पुट इट इन द फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. मुझे निकालना है t, तो t की वैल्यू आएगी v माइनस यू अपॉन a. t ऊपर और a नीचे, t इधर चला गया और a इधर चला गया. सो t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन a. v के जगह पे 0 क्योंकि बॉडी कम्स टू रेस्ट, u के जगह पे 20, a के जगह पे 5. माइनस टू माइनस कैंसिल, 24. ओके, 5 4 से 20. तो अल्टीमेटली टाइम कितना आ गया, 4 seconds. So this is another type of question which you get. Always revise the question, it will be easy for you to understand them. Okay, now let's come to the last question for today. अब वो कह रहा है, एक ड्राइवर है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, ब्रेक्स अप्लाई कर देता है एंड गाड़ी को रेस्ट में लेकर आ जाता है 20 सेकेंड में. गाड़ी को रेस्ट में लेकर आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी को क्या हो गया, 0. तो जो क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखा है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, u. तो u आपका 10 हो गया, v आपका 0 हो गया, a निकालना है मुझे, t 20 सेकेंड्स. पुट इट अप इन द वैल्यू, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी. v0 u 10 20 माइनस 10 बाई 20, 0 to 0 कैंसिल, माइनस 1 बाई 2 एंड अल्टीमेटली 0.5 माइनस 0.5. देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है विच इज़ बेसिकली योर रिटार्डेशन. तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कह रहा है द रिटार्डेशन इज समथिंग, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले लेना है. और अगर पूछा है कैलकुलेट रिटार्डेशन, तो आपकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव में ही आना चाहिए.
ओके, सो यहाँ पे जैसे नेगेटिव में आ रहा है, सो दैट मीन्स इट इज़ करेक्ट, राइट. सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमारा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा, नेक्स्ट पार्ट रहेगा, उसमें हम लोग इक्वेशन सीखेंगे, 3 अलग अलग टाइप के इक्वेशंस टू सॉल्व दी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, जिसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. इसको हम पहले ग्राफिकल वे में स्टडी करेंगे, फिर अलग से हम स्टडी करेंगे, ठीक है. सो फॉर एज ऑफ नाउ बेसिक क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा. आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस टू ट्राई. पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज़ 0.06 मीटर पर सेकेंड. नाउ दिस इज इक्वल टू ABCD. 4 ऑप्शन आपको बताने, इनमें से कौन से ऑप्शन के साथ आंसर करेक्ट हो रहा है. मतलब ये किलोमीटर पर आवर में, यानी कि इसको आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किससे इक्वलेंट है. एंड तीसरा क्वेश्चन जो है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज़ 200 किलोमीटर्स. फर्स्ट 100 किलोमीटर इज कवर्ड एट 50 किलोमीटर पर आवर. How fast the train must travel the next 100 kilometers so as to average 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी. तो ये जो क्वेश्चन है हमारा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेट कर रहा है. तो दीज आर दी बेसिक क्वेश्चंस. अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो रिव्यू करिए, रिवाइंड करिए, उसको बार बार समझिए, and ultimately you will get to know about this question. And what we have studied is, we have already understood about uniform, non-uniform acceleration, uniform, non-uniform retardation. Okay, so revise it, make note of it, and always revise the formulas and the numericals given in the question. Okay, so for as of now I'm going to wrap it up. Thank you so much, and everybody take care.